Hello student, today we are going to start our next topic from the class 12th mathematics, that is relation and function. See over here this is question from 1.1. Over here we have been given the set which has number 1 to this, the relation between them is this. What we'll do is that we have got what r is equal to xy, where relation is what 3x minus y is equal to 0. See, we can get the relation from these sets are what, when x is equal to 1, y will be 3. When x is equal to 2, y will be 6. When x is equal to 3, y is equal to 9. When x is equal to 4, y is equal to 12. And we can't get 5 because next will be 15, which is not possible. Now we have to check whether the sets are reflexive, symmetric or transitive. So we know that in order to check the reflexivity, so what we'll do is that we will say that whether it has one R element, we say that one is not element of R. So we'll say that, so it is not reflexive. Second, we'll check the symmetricity of this, whether the given relation is symmetric or not. See what we have. We have 1, 3 is element of R, but we do not have 3, 1 is not element of R. So it is not symmetric. Now we'll go for the transitive. We'll check the transitive nature of this function. See what we have. We have 1, 3 is related to element of R, 3, 9 is element of R, but we do not have 1, 9 is not related to R. So function is not transitive. So this function is neither symmetric nor reflexive nor transitive. Now we'll go for the question number 2. See what we have. Again in this case we have to check whether the function is reflexive, symmetric or transitive. First we'll create the sets. What is the relation is what? We have xy such that y is equal to x plus 5, and it is given that in all the cases we have to remember that x is less than 4. So and they are set of a natural number. So when we have x as 1, y will be 1 plus 5, that is 6. When we have 2, it will be 7. When we have 3, this is 8. And we can't have 4 because it says that x should be less than 4. So what we'll do, we'll check the reflexivity, whether the given relation is reflexive or not. In the case of reflexive relation, we know that, see what we have, we should have 1, 1 is element of R, or 2, 2 is element of R. We do not have any of this relation, so it is not reflexive. These functions are reflexive when they are related to itself. These are the not element of R, so the function is not reflexive. Now we'll check for the symmetric, whether it is symmetric. If A is related to B, then B should be related to A. We suppose we have 1, 6 is element of R, but we do not have 6, 1 is not element of R. So it is not symmetric. Third, we'll go for the we'll check the transitive nature. Transitive, suppose we have
uh, we should have 1 6 is element of, it is there, sorry, 1 6 is element of R. We do not have 6 is not related to any of these numbers, so there itself it is cancelled out. We do not have any element which has y as a range, so it is not transitive. In the case of transitive, you see some, there should have been 1 6 6 9 or something, and then it should be related to, means when certain thing, see, we know that reflexive is what, we should have this type of numbers. In the case of symmetric, A should be element of R, then BA should be element of R. And in the case of transitive, if AB is element of R and BC is element of R, then AC should have been the element of R. But all these relations are not available over here, so it is not transitive. So the relation is neither symmetric nor neither reflexive nor symmetric nor transitive. Now we'll go for the third question. See what is given to us. We have been given that relation is what? Relation is xy such that y is divisible by x. In order to check the reflexivity, reflexive relation means we should have x is element of R. So every number over here, like 2 is divisible by 2, 1 divided by 2, so these are the number available, there is no problem over here. So this is the element of R, so it is reflexive, no problem. The relation is reflexive. In the case of symmetric, what we will have? Suppose 2 divides 1, but we do not have, see, we have like 2 divide 6 is element of R, but 6 do not divide 2, and we do not get the numbers. So it is not symmetric. Now we'll check the transitive nature of. Suppose we know that we have like, we'll say that x is divided by y is the element of R, and y divides z is the element of R, then xz is element of R. So we can say that it is a transitive. How come? We can say that 1 3 divides 1, we can say 3 divides 6, and 6 divides 6 is divided by 1, all are element of R, so it is transitive. We have no problem with the transitive nature. It is not symmetric, it is reflexive, and it is transitive. Now we will go for question number 4. See over here what we have. We say that the relation is given to us is R xy such that x minus y is an integer. So in order to check the reflexive relation, see what we'll do is x minus x is what? 0, which is an integer. It is true for every number. So it is reflexive, no problem. Now we'll check the symmetric relation. See, suppose we have x minus y is certain integer, then obviously y minus x is also an integer. We have no problem, so it is symmetric. Symmetric relation is valid. In case of transitive,
see what we have. X minus y is some certain integer, y minus z is also integer, so x minus z is also integer, so we have, it is transitive relation also, no problem. Means this relation is reflexive, symmetric and transitive as well. Now we'll go for like, we have to check whether these relations are reflexive, symmetric or transitive. See, when we have, in case of A, x is element of R, both of them work in the same place, no problem, reflexive है. If x y एक जगह काम कर रहे हैं तो y x भी एक ही जगह काम करेंगे, करेक्ट है. एक्स वाई अगर एक जगह काम कर रहा है इस, या एक जगह रह रहा है, वाई जेड एक जगह रह रहा है, देन एक्स जेड भी एक ही जगह रह रहा है. तो ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है और ट्रांजिटिव भी है. सिमिलरली लाइक इसके लिए जाते हैं बी के लिए, तो हम लोग देखेंगे यहाँ पे भी ये अगर डाला जाए एक्स लिव्स इन द सेम कॉमन इन द सेम प्लेस, तो एक्स इज एलिमेंट ऑफ आर, तो हमारा रिफ्लेक्सिव है, ये रिफ्लेक्सिव होगा. इफ़ एक्स वाई लिव इन द सेम लोकेलिटी एंड वाई एक्स ऑल्सो लिव इन द सेम लोकेलिटी, तो सिमेट्रिक भी है ये. एंड इफ़ एक्स वाई इज एलिमेंट ऑफ आर एंड वाई जेड इज एलिमेंट ऑफ आर, तो ऑब्वियसली एक्स जेड भी एलिमेंट ऑफ आर होगा, तो ये ट्रांजिटिव भी है. तो हमारा ये रिलेशन क्या हो गया, रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है एंड ट्रांजिटिव भी है. अब जाते हैं सी पे कि एक्स इज टॉलर देन ये, तो एक बंदा अपने आप से ही 7 सेंटीमीटर टॉलर नहीं हो सकता है, तो रिफ्लेक्सिव नहीं है. अगर एक्स वाई से 7 सेंटीमीटर टॉलर है, बट वाई एक्स कैसे होगा, ये तो छोटा हो जाएगा इससे, तो नहीं होगा. फिर एक्स वाई इज़, तो हमारा रिफ्लेक्सिव, ये सिमेट्रिक नहीं है. उसके बाद एक्स वाई इज़ एलिमेंट ऑफ आर, वाई जेड इज़ एलिमेंट ऑफ आर, तो ट्रांजिटिव भी नहीं होगा. अब जो इन दोनों के बीच का डिफरेंस आ जाएगा 14 सेंटीमीटर का, तो ये ट्रांजिटिव भी नहीं है, रिफ्लेक्सिव भी नहीं है, न सिमेट्रिक है न ट्रांजिटिव है, कि कोई बंदा जो है 7 मीटर अपने आप से टॉल नहीं हो सकता है. फिर हमारे पास डी, एक्स इज़ वाइफ ऑफ, कोई बंदा अपने आप का तो वाइफ नहीं हो सकता है, इज़ नॉट एलिमेंट, रिफ्लेक्सिव नहीं है. और एक एक्स वाई के बीच में वाइफ का रिलेशन है, तो वाई एक्स के बीच में तो हस्बैंड का रिलेशन होगा, तो ये भी पॉसिबल नहीं है, सिमेट्रिक भी नहीं है. और एक्स वाई इज एलिमेंट ऑफ आर एंड वाई जेड इज़ एलिमेंट ऑफ आर, तो एक्स जेड का भी इसी तरह से कोई रिलेशन नहीं हो सकता है, तो ये ट्रांजिटिव भी नहीं है. इट इज़ नाइदर रिफ्लेक्सिव नॉट सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव. एक्स इज़ फादर, अब ई है, कोई बंदा अपने आप का फादर तो नहीं हो सकता है, तो इज़ नॉट एलिमेंट ऑफ आर, तो रिफ्लेक्सिव नहीं है. एक्स वाई के बीच में अगर फादर का रिलेशन है, तो वाई एस के बीच में तो सन का रिलेशन होगा, तो ये नहीं है. फिर एक्स वाई इज़ एलिमेंट ऑफ आर है, वाई जेड इज़ एलिमेंट ऑफ आर है, तो एक्स जेड में तो दादा पोता का रिलेशन हो जाएगा, तो ये ट्रांजिटिव भी नहीं है. इसके बाद हम लोग जाते हैं क्वेश्चन नंबर 2. क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहा है हमें कि अगर हमारे पास ये रिलेशन सेट ऑफ आर, रियल नंबर के बीच का रिलेशन है, तो हम लोग चेक करेंगे इसका रिफ्लेक्सिव रिलेशन. तो देखेंगे रिफ्लेक्सिव में क्या है कि हमारे पास 1/2 इज़ लेस देन इक्वल टू 1/2 का स्क्वायर. ऐसा हो सकता है क्या? नहीं. 1/2 0.5 है, ये 0.25 है, तो हम लोग बोले इट इज़ नॉट ट्रू. तो जब ट्रू नहीं है तो क्या होगा,
1/2 इज नॉट एलिमेंट, रिफ्लेक्सिव नहीं है। इसके बाद आते हैं हमारा सिमेट्रिक चेक करते हैं। तो हमारे पास क्या है, -1, ये चेक करें हम लोग सिमेट्रिक के लिए। -1 इज़ लेस देन 3 का स्क्वायर, बट हम लोग यहाँ डालेंगे 3 इज़ लेस देन, नहीं आ रहा है ये, इक्वल टू -1 का स्क्वायर। तो सो R इज़ नॉट सिमेट्रिक। इसके बाद आते हैं हम लोग क्या चीज़ है, ट्रांजिटिव रिलेशन को चेक करते हैं। तो हम लोग बताएं कि 2 इज़ लेस देन और इक्वल टू -3 का स्क्वायर। उसके बाद देखेंगे क्या, -3 इज़ लेस देन इक्वल टू 1 का स्क्वायर, बट हमारे पास 2 इज़ नॉट लेस देन इक्वल टू 1 का स्क्वायर, तो ये हमारा वैलिड नहीं है। तो इट इज़ नॉट ट्रांजिटिव। तो ये क्या चीज़ है, इट इज़ नदर रिफ्लेक्सिव नॉर सिमेट्रिक नॉर ट्रांजिटिव। इसके बाद जाएंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 में। क्वेश्चन 3 क्या बोल रहा है, अगर हम लोग इसका ये बोलता है चेक द रिलेशन ऑन आर, तो ये हमारा रिलेशन क्या निकल के आएगा, इसका रिलेशन निकल के आएगा, अगर a को 1 डालते हैं तो b आता है 1 + 1 2, ये 2 डालते हैं तो यहाँ 3, ये 3 डालते हैं तो 4, यहाँ 4 डालते हैं तो 5, यहाँ पे 5 डालते हैं तो 6, और 7 तो हो नहीं सकता है। ये हमारे पास रिलेशनशिप आ रहा है। तो एक चीज़ देखेंगे क्या, कि हमें रिफ्लेक्सिव रिलेशनशिप चेक करने के लिए क्या देखना होगा, हमारे पास मीन्स रिफ्लेक्सिव के लिए, तो अगर है हम लोग बोलेंगे कि B इज इक्वल टू A रिफ्लेक्सिव के लिए। तो एक चीज़ देखेंगे कि हमारे पास, तो ये क्या आता है, A इज इक्वल टू A + 1, तो ये तो नहीं हो सकता है, सो इट इज़ फॉल्स। तो हमारा ये रिफ्लेक्सिव नहीं है। अब हम लोग चेक करेंगे सिमेट्रिक के लिए रिलेशन। सिमेट्रिक के लिए क्या होना चाहिए, AB इज इक्वल टू BA। अब हम लोग देखेंगे क्या चीज़ है, B इज इक्वल टू A + 1 है एंड A इज इक्वल टू B + 1 है। तो हम लोग यहाँ पे देखेंगे क्या, कि ये भी नहीं आएगा, कि B इज इक्वल टू A आ जाएगा, नहीं तो ये भी हमारा पॉसिबल नहीं है। तो इट इज़ नॉट सिमेट्रिक। इसके बाद देखेंगे हम लोग क्या चीज़, A का रिलेशन B से, B का रिलेशन C से एंड A का रिलेशन C से। तो यहाँ पे देखेंगे B किसके बराबर है, A + 1, C के पर किसके बराबर है, B + 1, तो C किसके बराबर आ जाता है, A + 2, तो ये भी रिलेशन फॉल्स हो जाएगा। सो इट इज़ नॉट ट्रांजिटिव। इसके बाद आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये क्या बोल रहा है हमें, ये क्वेश्चन नंबर क्या है, क्वेश्चन नंबर 4 बोल रहा है कि AB इज़ लेस देन इक्वल टू B। हमने चेक करके बताना है कि वेदर इट इज़ रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव। तो एक चीज़ देखते हैं क्या चीज़, हम लोग यहाँ पे पहला क्या जाएगा, रिफ्लेक्सिव के लिए A इज़ लेस देन इक्वल टू A, तो ये कम से कम इक्वल तो है, तो हम लोग बोलेंगे R इज़ रिफ्लेक्सिव है। दूसरा सिमेट्रिक के लिए चेक करेंगे, सिमेट्रिक के लिए क्या होगा मेरे पास, हम लोग बोलेंगे कि 2 3 एक रिलेशन है, 2 इज लेस देन 3, बट 3 2 इज़ नॉट एलिमेंट ऑफ R, तो ये सिमेट्रिक नहीं होगा। इसके बाद आते हैं हम लोग चेक करने के लिए ट्रांजिटिव के केस में।
कि अगर हमारे पास ए बी इज़ एलिमेंट ऑफ आर है और बी सी इज़ एलिमेंट ऑफ आर है, तो ए सी भी एलिमेंट ऑफ आर होगा। क्यों? कि अगर मान लो 2 3 से छोटा है, 3 4 से छोटा है, तो 2 4 से छोटा होगा, तो ये ट्रांजिटिव है। इसके बाद जाते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 में। ये क्या बोल रहा है? रियल नंबर पर डिफाइंड है एंड ए इज़ लेस देन ए क्यूब। हमारे पास रिलेशन क्या है? रिलेशन ए बी, ये क्वेश्चन में दिया हुआ है, ए इज़ लेस देन बी क्यूब। अब हम लोग जाएंगे कि अगर मान लो हम लोग ये ए को 1/2 ले ले, इज़ लेस देन 1/2 का क्यूब, तो देखेंगे कि हमारे पास ए इज़ 1/2, बी, तो ये देखेंगे 1/2 इज़ नॉट एलिमेंट ऑफ आर, तो ये रिफ्लेक्सिव नहीं है। इसके बाद देखेंगे कि हम लोग चेक कर लिए कि ये रिफ्लेक्सिव नहीं है। अब जाते हैं सिमेट्रिक के लिए, कि अगर हम लोग जाएं 2 इज़ लेस देन और इक्वल टू, हम लोग लिख देते हैं 12 का क्यूब है, तो 12 इज़ नॉट लेस देन 2 का क्यूब, तो इट इज़ नॉट सिमेट्रिक। माने कोई भी ऐसा केस हम लोग प्रूव कर दें कि वैलिड नहीं है तो वो नहीं होगा। ठीक है, उसके बाद जाते हैं हमारे पास ट्रांजिटिव के लिए। ट्रांजिटिव के लिए क्या करना पड़ेगा? ए का रिलेशन बी से, बी का सी से, हम लोग बोलेंगे क्या चीज़, ए को ले लेते मान लो 12, बी को ले लिया 3 और सी को ले लिया 2, तो क्या चीज़ है? 12 3, तो हमारे पास है 12 इज़ लेस देन 3 का क्यूब, ये ट्रू है। ठीक है, 3 2 इज़ एलिमेंट ऑफ आर। इसके बाद देखेंगे 3 इज़ लेस देन 2 का क्यूब। उसके बाद देखेंगे 12 2 का रिलेशन, ये देखेंगे ये नहीं आएगा, इज़ नॉट एलिमेंट ऑफ आर। क्यों? 12 इज़ नॉट लेस देन 2 का क्यूब, तो ये हमारे पास नॉट ट्रांजिटिव, मीन्स वैलिडिटी यहाँ पे नहीं है, तो ना इधर रिफ्लेक्सिव है, नॉट सिमेट्रिक है, ना ही ये ट्रांजिटिव है। इसके बाद जाएंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 6। बोलता है कि 1 2 3 एक रिलेशन दिया गया है और इसका आउटकम भी दिया हुआ है 1 2 2 1। अब हम लोग देखेंगे क्या कि हमें चेक करना है कि इसके ये रिफ्लेक्सिव है कि नहीं। सिमेट्रिक बट नाइदर रिफ्लेक्सिव होने के लिए इसके पास क्या चाहिए था? 1 2 3 का सेट है, तो 1 1 होना चाहिए था, 2 2 होना चाहिए था, 3 3 होना चाहिए था। ये है ही नहीं इसके पास, 1 2 2 1 है, तो इट इज़ नॉट रिफ्लेक्सिव, इज़ नॉट एलिमेंट ऑफ आर, इट इज़ नॉट रिफ्लेक्सिव। इसके बाद देखेंगे हमारे पास क्या है कि अगर हमारे पास 1 2 सिमेट्रिक के लिए क्या होना चाहिए था हमारे पास, वो अगर 1 2 इज़ एलिमेंट ऑफ आर है तो 2 1 भी एलिमेंट ऑफ आर होना चाहिए, तो ये हो जाएगा इट इज़ सिमेट्रिक। ठीक है, इसके बाद हम लोग जाएंगे हम लोग ट्रांजिटिव में, तो देखेंगे क्या चीज़ है। अगर हमारे पास 1 2 रिलेशन है, एलिमेंट ऑफ आर है, एंड 2 1 इज़ एलिमेंट ऑफ आर है, तो ट्रांजिटिव होने के लिए क्या होना चाहिए था? 1 1 इज़ एलिमेंट ऑफ आर, जो कि नहीं है, तो इट इज़ नॉट ट्रांजिटिव। तो क्योंकि हमारे पास इसने दिया ही है 1 2 2 1, तो 1 1 2 2 3 3 के लिए ये रिफ्लेक्सिव होने के लिए होना चाहिए था, जो नहीं है, तो इट इज़ नॉट रिफ्लेक्सिव। सिमेट्रिक है, 1 2 2 1 है, तो इसके पास एलिमेंट ऑफ आर है, सिमेट्रिक है। 1 2 दिया है रिलेशन, 2 1 भी दिया है, बट 1 1 नहीं दिया है। ट्रांजिटिव के लिए क्या होता है? ए इज़ रिलेटेड टू बी, बी इज़ रिलेटेड टू सी, एंड ए सी इज़ रिलेटेड टू
एलिमेंट ऑफ आर, तो ये वाला एलिमेंट नहीं है तो इट इज़ नॉट ट्रांजिटिव। इसके बाद जाएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन को देखने के लिए। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है? फॉर एनी बुक एक्स इन अ सेट वी ऑब्जर्व दैट एक्स एक्स हैव सेम नंबर ऑफ पेजेस। मीन्स क्या चीज़ है कि भाई एक बुक है तो वही है उसका पेजेस तो सेम होगा, तो ये एक्स एक्स अगर दोनों जगह डालते हैं इट हैज सेम नंबर ऑफ पेजेस, तो ये हमारे पास रिफ्लेक्सिव है। इसके बाद जाएंगे हम लोग कि अगर एक्स वाई हैज़ सेम नंबर ऑफ पेजेस तो वाई एक्स इज़ ऑल्सो हैविंग सेम नंबर ऑफ पेजेस, तो भाई ये सिमेट्रिक भी है। उसके बाद ट्रांजिटिव के लिए चेक करें कि एक्स वाई हैज़ सेम नंबर ऑफ पेजेस, वाई जेड हैज़ सेम नंबर ऑफ पेजेस, तो एक्स जेड हैज़ ऑल्सो सेम नंबर ऑफ पेजेस, तो ये ट्रांजिटिव है। कोई भी रिलेशन रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है, ट्रांजिटिव भी है, तो ये हो जाएगा क्या चाहिए हमारा, ये हो जाएगा इक्विवेलेंस रिलेशन। इसके बाद हम लोग आएंगे क्वेश्चन नंबर 8। ये क्या बोल रहा है? हमारे पास रिलेशन है 1 2 3 4 5 गिवन बाय ए बी सच दैट मॉड ए माइनस बी इज इवन is an equivalence relation so that all the element of 1 3 5 are related to each other and all the element of 2 4 are related to each other but no element are related to this and this। तो एक चीज़ देखेंगे क्या कि रिफ्लेक्सिव के लिए हमारे क्या चेक करना है, इक्विवेलेंस है। तो सबसे पहले रिफ्लेक्सिव के लिए जाते हैं हम लोग। रिफ्लेक्सिव के लिए देखेंगे कि एक्स एक्स इज एलिमेंट ऑफ आर, तो हमें पता है कि ये तो करेक्ट हो जाएगा कि समथिंग डिवाइडेड बाय इटसेल्फ ए माइनस ए इज 0, तो इट इज़ इवन, तो सो इट इज़ रिफ्लेक्सिव है। उसके बाद हम लोग जाते हैं सिमेट्रिक चेक करने के लिए। अगर एक्स वाई मैंने एक्स माइनस वाई इज एलिमेंट ऑफ है तो y माइनस एक्स इज ऑल्सो इवन, कोई प्रॉब्लम नहीं है, सो इट इज़ सिमेट्रिक। क्योंकि अगर मान लें 2 4 2 माइनस 4 या 4 माइनस 2 दोनों इवन नंबर है, कोई इसमें डाउट नहीं है। और ट्रांजिटिव भी होगा क्योंकि अगर x माइनस वाई अगर इवन नंबर है, वाई जेड अगर इवन नंबर है, तो एक्स जेड भी हमारा इवन नंबर हो, सो इट इज़ ट्रांजिटिव ऑल्सो। अब एक चीज़ हमें देखना है कि 1 3 5 है, एक दूसरे से ये रिलेटेड है, तो देखेंगे क्या कि हमारे पास 1 3 5 से अगर घटाते हैं नंबर तो हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, ये नंबर जनरेट करेगा इवन 1 3 5। अगर ये 3 माइनस 1 करो तो 2 है, 5 माइनस 3 करो तो 2 है, तो ये इवन नंबर जनरेट कर रहा है। उसके बाद हम लोग देखेंगे क्या कि 2 4 के बीच का रिलेशन करते हैं, तो यहाँ भी 2 माइनस 2 ये भी है, 2 माइनस 4 ये भी इवन नंबर जनरेट कर रहा है। बट 1 3 5 एंड 2 4 में रिलेशन नहीं है, क्योंकि 1 2 माइनस 1 करोगे तो ऑड नंबर आ जाता है, 5 माइनस 4 करोगे तो ऑड नंबर आता है। इन दोनों में अपना कुछ रिलेशन नहीं है, बट 1 3 5 एंड 2 4 अपने आप में रिलेटेड है और वो इक्विवेलेंस रिलेशन भी है। इसके बाद आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 में। 9 क्या बोल रहा है हमें कि हमारे पास नंबर जनरेट करते हैं तो हमारे पास क्या आता है, पहले हम लोग चेक करेंगे रिफ्लेक्सिव के लिए। रिफ्लेक्सिव रिलेशन के लिए बोलेंगे कि हम लोग फॉर एनी ए इज़ एलिमेंट ऑफ ए, हमारे पास क्या आ रहा है, ए माइनस ए का मोड करेंगे तो वो 0 क्या है, विच इज़ मल्टीपल ऑफ 4, विच इज़ मल्टीपल ऑफ 4। इसके बाद देखेंगे कि तो इसका मतलब क्या हुआ, ये ए इज एलिमेंट ऑफ आर है, रिफ्लेक्सिव है। अब हम लोग जाएंगे सिमेट्रिक चेक करने के लिए।
तो सिमेट्रिक के लिए क्या है, अगर बोलेंगे कि a माइनस बी इज मल्टीपल ऑफ 4, मल्टीपल ऑफ 4, देन b माइनस ए भी हमारा मल्टीपल ऑफ 4 होगा। इसके बाद देखेंगे थर्ड रिलेशन ट्रांजिटिव के लिए। अगर a माइनस बी इज मल्टीपल ऑफ 4 है एंड b माइनस सी भी मल्टीपल ऑफ 4 है, तो a माइनस सी भी 4 का मल्टीपल होगा। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, इक्विवेलेंस रिलेशन है। उसके बाद जो है हमारा ये क्या बोल रहा है कि फाइंड द सेट ऑफ ऑल रिलेटेड टू इन ईच केस, फाइंड द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट रिलेटेड टू वन ईच केस, मीन्स x माइनस 1 इज मल्टीपल ऑफ 4 बोल रहा है मान लो। तो x माइनस 1 इजल टू हमारे पे क्या होगा, ये 0, तो x इजल टू 1 हो जाएगा। x माइनस 1 इजल टू 4 का मल्टीपल है, तो x इजल टू 5 एंड x माइनस 1 इज 4 का मल्टीपल तो 8, तो x इजल टू 9। तो ये आ जाएगा रिलेशन 4 से 1 से रिलेटेड है 1, 5, 9। इसके बाद है हमारा क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 हमें क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 10 हमें क्या बोल रहा है, ये सिमेट्रिक हमें बनाना है कि एग्जाम्पल रिलेशन विच इज़ सिमेट्रिक है बट नाइदर रिफ्लेक्सिव नॉट ट्रांजिटिव। ये अपने मन से हमें बनाना है एक ऐसा सेट जो सिमेट्रिक हो बट रिफ्लेक्सिव भी ना हो न ट्रांजिटिव हो। तो हम फर्स्ट के लिए क्या करेंगे, हम एक सेट बनाया ए में दैट हैज़ 5, 6, 7 और इसका जो रिलेशन बनाए वो बनाए हमने 5, 6 एंड 6, 5। तो ये देखेंगे क्या है, ये सिमेट्रिक है बट रिफ्लेक्सिव नहीं है क्योंकि 5, 5, 6, 6 इज़ नॉट एलिमेंट ऑफ आर। ट्रांजिटिव नहीं है क्योंकि 5, 6 रिलेटेड होगा, अगर मान लो कुछ भी नंबर है 6, 7 रिलेटेड है बट 5, 7 इज़ नॉट एलिमेंट ऑफ, ये सारा नहीं है। तो ये हमारा सिमेट्रिक है बट नाइदर सिमेट्रिक नॉट ट्रांजिटिव। अब सेकंड में जो पूछ रहा हमें कि ऐसा रिलेशन जो ट्रांजिटिव है, अब हम लोग ऐसा रिलेशन ए बी में हम लोग ऐसा बनाएं, उसका नाम दे दिए ए इज़ लेस देन बी। तो देखेंगे क्या है, ये जो है जो ट्रांजिटिव होगा बट एनी नंबर जैसे 1 इज़ नॉट इक्वल टू 1, तो 1 इज़ लेस देन इक्वल टू, तो ये रिफ्लेक्सिव नहीं है। इफ़ 1 इज़ लेस देन 2 बट 2 इज़ नॉट लेस देन 1, तो ये सिमेट्रिक नहीं है। बट 1 इज़ लेस देन 2 एंड 2 इज़ लेस देन 4, तो 1 इज़ लेस देन 4, ये तो ट्रू है, तो ट्रांजिटिव है ये। तो ये एग्जाम्पल हो गया हमारा कि ऐसा फंक्शन जो ट्रांजिटिव तो है बट रिफ्लेक्सिव और सिमेट्रिक नहीं है। इसके बाद जाएंगे, हमारे पास क्या पूछ रहा है ये, रिफ्लेक्सिव एंड सिमेट्रिक, ऐसा फंक्शन जो हमारे पास रिफ्लेक्सिव भी हो और सिमेट्रिक भी हो बट ट्रांजिटिव नहीं हो। तो हम लोग थर्ड में देखेंगे ये क्या है, एक ऐसा सेट बनाए हम लोग, क्या चीज़ 4, 6, 8। तो यहाँ पे देखिए हम इससे सेट बना लिए क्या चीज़ 4, 4, 6, 6, 8, 8, 4, 6, 6, 4, 6, 8, 8, 6।
तो देखेंगे क्या है, इसके पास रिफ्लेक्सिव है, क्यों, इसके पास है 4 4 6 6 8 8, तो ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन है। इसके बाद देखेंगे रिफ्लेक्सिव एंड सिमेट्रिक भी है। कैसे, 4 सिमेट्रिक के लिए क्या होना चाहिए, 4 6 6 4 रिलेटेड है, 6 8 8 6 भी रिलेटेड है, तो ये सिमेट्रिक भी है, मगर ट्रांजिटिव नहीं है। क्यों, 4 6 तो रिलेटेड है एंड इसके बाद 4 6 और 6 8, बट 4 8 का रिलेशन नहीं है, तो ये हमारा ट्रांजिटिव नहीं है। रिफ्लेक्स ये अपने मन से बनाना था, 4 से 6 8 से इस तरह से कॉम्बिनेशन बनाएं कि हमारा रिफ्लेक्सिव बन जाए, सिमेट्रिक बन जाए, बट जानबूझ के ऐसा टर्म नहीं डालेंगे जो ट्रांजिटिव इसको बना दे। इसके बाद हम लोग आएंगे, इसके बाद कुछ बच रहा था इसके अंदर में, नंबर ये कौन सा हो गया था, 3rd हो गया था। इसके बाद 4th में हमारा क्या है कि हमारे पास 4th का भी है पंगा। 4th में हमें ऐसा सेट बनाना है जो रिफ्लेक्सिव है एंड सिमेट्रिक है बट ट्रांजिटिव नहीं है। तो देखिए हम लोग बनाएंगे ए क्यू इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू बी क्यू। तो यहाँ देखेंगे हम लोग क्या कि ए इज़ एलिमेंट ऑफ आर, तो बोलेंगे ए क्यू इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू ए क्यू, तो ये रिफ्लेक्सिव होगा। उसके बाद देखेंगे सिमेट्रिक, इफ़ ए बी इज़ एलिमेंट ऑफ आर, ए क्यू इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू बी क्यू एंड बी ए इज़ एलिमेंट ऑफ आर, मीन्स बी क्यू इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू डालने से तो ये रिलेशन हो जाएगा वैलिड। बट ट्रांजिटिव के लिए क्या, अगर ए बी सी से रिलेशन अगर बनाए हैं तो ये दिक्कत कर सकता है। ट्रांजिटिव के लिए चेक करेंगे, 2 1 अगर मान लो एलिमेंट ऑफ आर है तो 2 क्यूब इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 1 का क्यूब। इसके बाद 1 2 इज़ एलिमेंट ऑफ आर है तो 1 क्यूब इज़ लेस देन 2 का क्यूब। बट हम लोग बोलेंगे क्या चीज़, हमारे पास एक चीज़ है ये वाला पार्ट, ये हमारा क्वेश्चन में क्या था, क्वेश्चन में क्या डाला हुआ है 4th में, रिफ्लेक्सिव एंड ट्रांजिटिव, सिमेट्रिक नहीं बनाना है, ये आ भी नहीं रहा है सिमेट्रिक। थोड़ा दिक्कत आ रहा है क्वेश्चन को सॉर्ट आउट करने, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम लोग, जगह नहीं मिल रहा है इसका। इसके बाद हम लोग आएंगे, ये रिलेशन हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 11। ये क्या बोल रहा है, डिस्टेंस ऑफ पॉइंट P फ्रॉम द ओरिजिन इज सेम एट द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट Q फ्रॉम द ओरिजिन। तो ये एक चीज़ देखेंगे क्या चीज़, ये रिलेशन क्या बता रहा है हमारे पास, PQ is such that distance of point P from origin is same। तो हम लोग देखेंगे PP is element of R, अगर इसका डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन सेम है तो ये तो हमारा रिफ्लेक्सिव होगा रिलेशन। इसके बाद हम लोग आते हैं PQ का रिलेशन, डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन सेम है तो QP भी एलिमेंट ऑफ R होगा, डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन सेम होगा, तो ये हमारा सिमेट्रिक भी है। अब PQ का डिस्टेंस ओरिजिन से सेम है, QR का डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन सेम है, तो PR का भी डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन सेम होगा, तो ये हमारा रिलेशन ट्रांजिटिव भी होगा। इसके बाद आते हैं हमारे पास बचा क्या रिलेशन,
12 हमारे पास है T1 T2 क्या है, सिमिलर ट्रायंगल का रिलेशन। तो एक चीज़ तो हमें कंफर्म होता है कि रिफ्लेक्सिविटी चेक करना है कि ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव है कि नहीं। तो हमें पता होता है कि भाई एनी ट्रायंगल इज़ सिमिलर टू इटसेल्फ, T1 इज रिलेटेड टू T1, तो रिफ्लेक्सिव तो है। सिमेट्रिक चेक करेंगे, इफ ट्रायंगल T1 इज सिमिलर टू T2 then is element of R, then T2 T1 is also एलिमेंट ऑफ R। तो ये आ जाएगा सिमेट्रिक भी और ट्रांजिटिव भी होगा। क्यों? अगर T1 T2 अगर एलिमेंट ऑफ R है, माने कि सिमिलर है, T2 T3 इज एलिमेंट ऑफ R, देन T1 T3 इज ऑल्सो एलिमेंट ऑफ R। तो ये हो गया हमारा इक्विवेलेंस रिलेशन। और एक चीज़ देखेंगे क्या ये किस तरह से रिलेटेड है। तो एक चीज़ देखेंगे हमारा ये 3/6 4/8 और 5/10 के बीच में जो है ना सिमिलर रिलेशन है, ये प्रोपोर्शनल है, ये वाला ट्रायंगल और ये वाला ट्रायंगल, ठीक है, सिमिलर है, प्रोपोर्शनल है। इसीलिए इफ टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर देन देयर साइड्स आर प्रोपोर्शनल। उसके बाद हम लोग देखेंगे क्या है कि हमें क्या बोला जा रहा है क्वेश्चन नंबर 13 में। सो दैट R इज अ पॉलीगन P1 P2 हैव सेम नंबर ऑफ साइड्स इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। तो एक चीज़ देखेंगे कि ये इक्विवेलेंस रिलेशन होगा कैसे कि R इज व्हाट P1 P2 सच दैट P1 and P2 has same number of side। तो एक चीज़ देखेंगे तो ये ऑब्वियसली ये तो रिफ्लेक्सिव है। उसके बाद हम लोग देखेंगे कि अगर P1 P2 इज़ एलिमेंट ऑफ R होगा तो P2 P1 इज़ ऑल्सो एलिमेंट ऑफ R। इसके बाद तो इसका मतलब सिमेट्रिक भी है। इसके बाद देखेंगे अगर P1 P2 is element of R and P2 P3 is element of R, then P1 P3 is also element of R। तो ये रिलेशन हमारा ट्रांजिटिव भी हो गया। इसके बाद what is the set of all A related to right angle triangle with the relation 3 4 5। तो ये एलिमेंट अगर 3 4 5 जो है ना बेसिकली ये क्या हो जाएगा साइड्स ऑफ द एलिमेंट ऑफ द रिलेटेड टू द राइट एंगल। ये राइट एंगल ट्रायंगल जैसे होगा ये 3 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, ये 5 आ जाएगा और ये यहाँ पे 90 डिग्री बनेगा राइट एंगल ट्रायंगल। तो ये हमारा क्या चीज़ है इक्विवेलेंस रिलेशन भी है और 3 4 5 जो है इस तरह से राइट एंगल का साइड्स है। इसके बाद जाएंगे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्या बोल रहा है XY प्लेन पे एक रिलेशन है L1 इज़ पैरेलल टू L2। फिर ये तो सिंपल है कि इफ L1 इज एनी लाइन इज पैरेलल टू इटसेल्फ इज एलिमेंट ऑफ R। दूसरा तो ये रिफ्लेक्सिव है। उसके बाद L1 इज़ पैरेलल टू L2 इज एलिमेंट ऑफ R। L2 भी L1 के पैरेलल होगा, तो ये हो गया हमारा सिमेट्रिक भी है। इसके बाद थर्ड में इफ L1 इज रिलेटेड टू L2 इज एलिमेंट ऑफ R एंड L2 L3 इज एलिमेंट ऑफ R, देन L1 L3 इज ऑल्सो एलिमेंट ऑफ R। तो ये हो जाएगा ट्रांजिटिव भी है। तो ये कोई भी रिलेशन रिफ्लेक्सिव भी है, ट्रांजिटिव भी है, रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है और ट्रांजिटिव है। तो ये क्या हो जाएगा हमारा इक्विवेलेंस रिलेशन हो जाएगा। और एक चीज़ देखेंगे क्या कि ये क्वेश्चन क्या है सेट ऑफ लाइन्स रिलेटेड फाइंड द सेट ऑफ ऑल। ये हमारा y इक्वल टू 2x + 4 है। तो इस लाइन का जो स्लोप है वो किसके बराबर है 2 है। और हम लोग ऐसा कोई भी बहुत सारा लाइन बना सकते हैं 2x + c।
ये सी को खाली डिफरेंट कर दें अलग अलग तो बहुत सारा लाइन बन जाएगा। फैमिली ऑफ लाइन 2s+5 कर दे, 2s+6 कर दे, तो बहुत सारा लाइंस हम लोग जनरेट कर सकते हैं इसके सिमिलर। नेक्स्ट क्या है, हाँ ये हो गया हमारा 14th क्वेश्चन। इसके अंदर 15 क्वेश्चन नहीं आ रहा है तो हम लोग इसको कर लेते हैं एक बार। क्वेश्चन नंबर 15 एनसीईआरटी का शायद नहीं आया है इसके अंदर। तो देखेंगे क्या क्वेश्चन नंबर 15 बुक से एक बार चेकआउट कर लेते हैं। वो क्या बोल रहा है, रिलेशन है सेट का 1 2 3 4। क्वेश्चन है बुक में, लेट आर बी द रिलेशन द सेट दे गिवन बाय। रिलेशन दिया हुआ है क्या क्या हमारे पास 1 2 2 2 1 1 4 4 1 3 3 3 एंड 3 2। वो तक कि हमें बताना है कि इसमें कौन सा करेक्ट आंसर होगा। तो हम लोग देखेंगे क्या चीज़, रिफ्लेक्सिव के लिए क्या क्या होना चाहिए हमारे पास 1 1 होना चाहिए, 2 2 होना चाहिए, 3 3 होना चाहिए, 4 4 होना चाहिए। तो रिफ्लेक्सिव तो है ये, ठीक है। इसके बाद हम लोग देखेंगे कि सिमेट्री के लिए चेक करेंगे 1 2 इज़ एलिमेंट ऑफ आर है, बट हमारे पास 2 1 इज़ नॉट एलिमेंट ऑफ आर, तो ये सिमेट्रिक तो नहीं है। उसके बाद हम लोग देखेंगे कि ट्रांजिटिव रिलेशन के लिए, ट्रांजिटिव का 1 का 2 से रिलेशन है एंड मेरे पास ऐसे आया है 1 का 3 से, 3 का 3 से, तो 1 का 3 से है, तो देखेंगे ये ट्रांजिटिव है। तो रिफ्लेक्सिव एंड ट्रांजिटिव है बट सिमेट्रिक नहीं है ये रिलेशन नंबर 15 में। हाँ, दैट्स ऑल फॉर टुडे, वील मीट इन द नेक्स्ट क्लास। थैंक यू।